discuss exercise 6.2 of singular points. In that we will discuss about the species of cusp. Now we already know that what is a cusp. A cusp, it is a double point in which the tangents are real and coincident. जहाँ पे tangents real और coincident हो वहाँ पे हमारे पास क्या बनता है cusp. So cusp की भी different types होते हैं. First is single cusp. A cusp is said to be single cusp if two branches of the curve lie on the one side of the normal. अगर हमारी किसी भी cusp की जो branches हैं वो एक side normal के lie करें then it is known as single cusp. Now if the two branches of the curve lie on both sides of the normal then it is called the double cusp. Now let us see from this curve. This is your normal and there इस साइड चीज़ यहाँ पे normal है. First single cusp क्या कहता है? If two branches lie on the one side of the normal. So this line is a normal and these two branches lie on one side of the normal. So it is single cusp. यहाँ पे भी देखिए normal है, इसके इस साइड lie करें so it is single cusp. ये normal है, इसकी दोनों साइड हमारे पास lie करें so it is double cusp. Similarly this is the normal और जो हमारी branches है वो दोनों साइड lie कर रही हैं, that side is double cusp. Now we will discuss about first species. It is also known as schizoid and second species also known as rhamphoid. If the branches of the curve lie on the opposite side of the tangent, then it is known as first species. Second species, if the branches lie on the same side of the tangent. This is your tangent T, and if it lies on both opposite sides, की tangent है इसके दोनों side है opposite sides, then it is first species. ये tangent इसकी एक ही side है, इसके नीचे नहीं है, तो it is second species. This is the tangent and in the opposite side, and it is first species. This is the tangent. It is only on the one side, so it is second species. So these are the first. Single cusp, first species, single cusp, second species, double cusp, first species, and double cusp, second species. Next we have a point of Oscar inflection. A double cusp with change of species on the two sides of the common normal. हमारे पास एक double cusp होता है. Double cusp means a cusp in which the tangents lie on the both sides of the normal. मतलब या तो ये होगा या फिर हमारे पास क्या होगा? एक डबल कास्ट विद चेंज ऑफ स्पीशीज. उसमें क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉमन नॉर्मल. ये हमारे पास दो नॉर्मल्स हैं, इसकी एक साइड क्या होता है हमारे पास स्पीशीज जो चेंज कर जाती है, मतलब कुछ इस टाइप की बन जाती है. देन इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ ऑस्कर इन्फ्लेक्शन. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट द कस्प एंड द टाइप्स ऑफ कस्प एंड देयर डेफिनेशन. नाउ लेट अस डिस्कस सम वर्किंग रूल फॉर आवर क्वेश्चंस. Now the strategy for finding the nature of cusp at origin. First case is when the cuspidal tangent are y square is equal to 0 means x-axis, then we have to solve the equation by neglecting highest power of y and the cubes of y. After that we will discuss the nature through this tree diagram. अगर आपको ट्री डायग्राम माइंड में तो आप और सारे क्वेश्चन जो सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए इसमें क्या कहता है कि अगर रूट्स हमारे पास रियल है फॉर वन साइन ऑफ x. सपोज मेरे पास कोई भी सॉल्व करके जो इक्वेशन आई है उसमें अगर सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो इक्वेशन होल्ड कर रही है या फिर x की नेगेटिव वैल्यू के लिए वो इक्वेशन होल्ड कर रही है, एक ही साइन है, उस टाइप को बोलेंगे हम सिंगल कस्प. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पॉजिटिव साइन के लिए भी होल्ड करे नेगेटिव साइन के लिए भी होल्ड करिए. देन इट विल बी केस ऑफ डबल कस्प. सिर्फ एक ही साइन होना चाहिए, तो पॉजिटिव साइन के लिए वो होल्ड करिए इक्वेशन या फिर वो नेगेटिव साइन के लिए होल्ड करिए इक्वेशन. रूट्स अगर हमारे पास अपोजिट साइन के प्लस माइनस है तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट स्पीशीज. अगर सेम साइन के है तो उसको बोलेंगे हम सेकंड स्पीशीज. नेक्स्ट केस 2. व्हेन द cuspidal tangent are x square is equal to 0 means y axis, then we will again neglect the highest power of x and cubes of x. क्यूब्स कब नेगलेक्ट करते हैं? जब हमारे पास इक्वेशन में हमें दिख रहा हो कि दो मतलब x का भी क्यूब है y का भी क्यूब है. फिर हम फर्दर इस ट्री डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे. थर्ड केस क्या बनता है? जब cuspidal tangent हमारे पास इस फॉर्म में हो ax plus by is equal to 0, देन हम लेट करेंगे p को, p is equal to ax plus by. फिर हम एलिमिनेट करेंगे y और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे p और x में. उसके बाद हम नेगलेक्ट करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ p. फिर हम उसका नेचर डिस्कस करेंगे. अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट में बताइए कि ये कस्पिडल टेंजेंट या फिर कुछ कौन सा कस्प है, तो उसमें हम शिफ्ट करेंगे हमारे ओरिजिन को एट दैट पॉइंट. अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ. Now in example number 1 we have to show that this curve has a single cusp of first species at origin. So this is the equation of the curve given. So first we will see the tangent at the origin. So tangent can be obtained by equating lowest degree term equals to 0 means y is equal to 0 and y is equal to 0. So हमारे पास यहाँ पे cusp है.
maybe it can be an isolated point also, you have to check that also. So we have a raised to power 4, लेकिन हमें यहाँ show करना है कि cusp ही है, so it will be always a cusp. So now we'll express y in terms of x, so we'll get y is equal to x raised to power 5 by 2 plus minus by a square under root of 2a minus x. Now for x lying between 0 to 2a, this is the positive value of x. We will get for one sign of x that is lying between 0 to 2a, means for the positive sign of x, we will have the roots are of one sign, therefore it is a single cusp. ये सिर्फ ये अंडर रूट के अंदर रियल कब रहेगा, जब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, किसी और वैल्यू के लिए हमारे पास पॉजिटिव नहीं आएगा, तो therefore the roots are of one sign and it is a single cusp. Now we are getting two values, देखिए दो वैल्यूज मिल रही है अपोजिट साइन की, so two roots with opposite sign, so it is of first species, so therefore it is a cusp of single cusp first species type. इसमें ध्यान रखना है अपोजिट साइड तो आपको क्लियर होगा. इसमें क्या चेक करना होता है हमें सिंगल कस्प में कि सिर्फ सपोज यहाँ पे ये होल्ड करता है हमारे पास -a2 -3a, सपोज इसके लिए भी होल्ड करते हैं, इन दोनों वैल्यूज के लिए अंडर रूट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही होती है, लेकिन ये दो वैल्यूज है पॉजिटिव साइन में नेगेटिव साइन में, तो ये हमारे पास सिंगल कस्प नहीं होता है, इट वुड बी अ डबल कस्प. लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 2. Now in example number 2, we have to show that this curve has a single cusp of first species at origin. So this curve is passing through origin by putting 0, 0, you can check. So the tangent at the origin will be, lowest degree term will be this. So 2x plus y square is equal to 0, means 2x plus y. अभी हमने पढ़ा था कि अगर ax plus by टाइप का हो तो हम इसको किसके इक्वल ऐड करते हैं, p को, फिर y is equal to p minus 2x. अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं y. So we will get here p square minus 6x p minus 2x p minus 6 7x cube is equal to 0. So p square minus 6x p square plus 12x square p minus 7x cube is equal to 0. So 1 minus 6x p square plus 12x square p minus 7x cube is equal to 0. जब हमने y को x की टर्म में एक्सप्रेस किया, फिर हमें इसको इस गिवन इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना है. अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, -12x स्क्वायर प्लस माइनस 144 x raised to power 4 minus 4 minus 7x cube into 1 minus 6x divided by 1 minus 6x into 2. 12x square plus minus under root of 144 x raised to power 4 plus 28 x cube minus 28 into 6 x raised to power 4 divided by 2 into 1 minus 6x. जब इसको सॉल्व करूँ तो आपका आंसर आ जाएगा -6x स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7x क्यूब माइनस 6x raised to power 4 डिवाइडेड बाय 1 minus 6. इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, -6x स्क्वायर प्लस माइनस x अंडर रूट x अंडर रूट ऑफ 7 minus 6x by 1 minus 6x. अब इसको देखिए इस यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, इसको माइनस करके याद रहेगा आपके पास. फिर यहाँ से हमने क्या ले लिया, x क्यूब कॉमन ले लिया, x क्यूब कॉमन ले तो x अंडर रूट x बाहर आ गया. अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज है वो तो आ रही पॉजिटिव नेगेटिव, सो देयरफॉर इट इज अ फर्स्ट स्पीशीज, क्योंकि दो वैल्यूज मिल रही है अपोजिट साइन की. अब बात करते हैं सिंगल कस्प की. Whenever we will have x greater than 0, the value of p will be real. जब x हमारे पास greater than 0 है तो हमारे पास p की वैल्यू 0 रियल है. जब x less than 0 है तो इमेजिनरी बन जाएगा, so therefore it is not real. For x greater than 0 means value क्या x की positive. For one sign of x we will get the roots as real, therefore it is a single cusp. Now let us discuss example number 3. Now in example number 3 we have to show that this curve has a single cusp of first species at the origin. So let us see the tangent at the origin. So tangent will be equating lowest degree term equals to 0 means x square is equal to 0 means y axis is the tangent. अगर हमारे पास x square is equal to 0 होता है, so we will express the given equation x in terms of y. x in
स्क्वायर इक्वल टू 0 होता तो y इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू y क्यूब डिवाइड बाय 2a माइनस 5, so we have x is equal to plus minus y under root of y divided by 2a minus 5. So from here we will get x is equal to 0 means यहाँ पे हमारे पास क्या पता लगता है, यहाँ से या तो कस्प बनेगा या आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा। चेक करते हैं कस्प है कि आइसोलेटेड पॉइंट। सो देखिए फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ y x is real, so therefore it is a cusp। अब पता लग गया कस्प, अब कस्प की कौन सी टाइप का वो पता लगाते हैं। देखिए फॉर वैल्यूज y greater than 0 means positive values of y we will get x as real। अगर नेगेटिव होता y हमारे पास तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता। सपोज मेरे पास y होता माइनस ए, मान लो क्या होता माइनस ए डिवाइडेड बाय 3a, नेगेटिव आ जाता अंडर रूट के अंदर, पॉसिबल ही नहीं था। सो फॉर पॉजिटिव वैल्यू x इज रियल, सो देयरफॉर इट इज अ सिंगल cusp and the roots, these are two signs, opposite signs, roots are of opposite signs, therefore it is of your first species। So we have single cusp of first species। Now in example number 4, show that this curve has a single cusp of first species at a given point। The point is हम shift करेंगे origin, shifting the origin at point 1, minus 1। So capital X is equal to x minus 1, capital Y is equal to y plus 1। So x plus 1 is equal to x and y minus 1 is equal to small y। So यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू x plus 1 plus y minus 1 whole cube minus under root 2 y minus 1 minus of x plus 1 minus plus 2 whole square is equal to 0। So we have x plus y whole cube minus under root 2 y minus x square is equal to 0। So यहाँ पे टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। Tangent will be equating lowest degree term equals to 0 means y minus x is equal to 0। So y is equal to x and y is equal to x। So either may be a cusp or it may be an isolated point। Now you have to check whether it is a cusp and or isolated point। First इसको open up कर देते हैं, y cube plus x cube plus 3x square y plus 3y square x minus under root 2 y square plus x square minus 2yx is equal to 0। So neglecting y cube highest power, x cube plus 3x square y plus 3y square x minus under root 2 y square plus x square minus 2yx is equal to 0। So अब इसको ज्वाइन करके लिख लेते हैं। यहाँ पे y square के कोफिशिएंट आ जाएंगे 3x माइनस अंडर रूट 2। फिर हमारे पास यहाँ से y के कोफिशिएंट देख लेते हैं 3x स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 2x और यहाँ पे कोफिशिएंट आ जाएगा x क्यूब, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब यहाँ से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2x होल स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर इंटू 3x माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3x माइनस रूट 2। नाउ वी विल सॉल्व दिस फर्दर। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ x y will be real, so we will have it as a cusp। तो हमारे पास क्या है cusp। अब cusp में कौन से टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए हमारे पास y माइनस एक्स है, अगर हमारे पास ax प्लस b टाइप की by कुछ टाइप की इक्वेशन होती है तो हम उसको रिलेट करते हैं। यहाँ से हम y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x एंड b, देन वी विल पुट y वैल्यू इन दिस इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन अभी पीछे जब हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। क्यूब ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। फिर p स्क्वायर x, हमने देखा था कि जब हमने वर्किंग रूल डिस्कस किया था उसमें कहा था मैंने कि p को x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, सो p इन टर्म्स ऑफ x। सो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। सोचिए इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन टफ है, आप ट्राई कर लीजिएगा खुद।
मैं काम है सब मेथड आपको बताना। देखिए यहाँ पे फॉर स्मॉल फॉर x greater than 0 we will have this value as roots are of same sign. Roots are real, sorry. For one value of x, roots are real, so therefore it is a single cusp. और हमें रूट्स जो है अपोजिट साइन के मिल रहे हैं, so it is of first species. Now let us discuss example number 5. Now in example number 5 we have to show that this curve has a point of Oscar inflection. उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो डबल कस्प होता है हमारे पास और कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप से हमारा इन्फ्लेक्शन हो जाता है। पर इसका टेंजेंट देखते हैं ओरिजिन। सो टेंजेंट विल बी इक्वेटिंग लोवेस्ट डिग्री टर्म इज इक्वल टू 0 मींस y इज इक्वल टू 0। यहां से हमें पता लगेगा कि कस्प सा बनेगा, लेकिन उसका इन्फ्लेक्शन हो चुका है हमारे पास। सो हम यहां से एक्सप्रेस करते हैं 8y² माइनस 4x² प्लस 2x³ y प्लस x रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। सो 4x² प्लस 2x³ माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस 2x³ माइनस 8 4 32 x रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2। तो फ्रॉम हियर वी गेट 4x² प्लस 2x³ जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4x² माइनस 2, यहाँ पे स्क्वायर है x³ क्योंकि ये जो अंदर वाला पार्ट है हमारे पास 4x² प्लस 2x माइनस 2x³ का होल स्क्वायर बनेगा और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो याद रखिएगा डिवाइड बाय 16। एक बार प्लस वैल्यू लीजिए, एक बार नेगेटिव वैल्यू लीजिए, तो एक बार हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी x³/4, एक बार आएगी x²/4। नाउ फॉर x नॉट इक्वल टू 0 we will get, मतलब x greater than 0 भी हो सकता है, x less than भी 0 हो सकता है। We will get these values that is equal to y as real. So roots are real for two signs. पॉजिटिव के लिए भी हमारे पास रियल वैल्यू आएगी, नेगेटिव के लिए भी रियल आएगी। So therefore it is a double cusp. ठीक है। Now for x greater than 0, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यूज के सेम साइन होंगे हमारे पास। Now for x less than 0, एक पॉजिटिव होएगी एक नेगेटिव, मतलब ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लेक्शन आ चुका है। अगर हमारे पास है तो फर्स्ट स्पीशीज की होती तो हमारे पास क्या होता, दोनों के सेम साइन होते हैं। सॉरी, अगर हमारे पास फर्स्ट स्पीशीज की होती तो हमारे पास अपोजिट साइन होते, सेकंड स्पीशीज की होती तो सेम साइन होते, लेकिन ये तो दोनों का मिक्सचर आ रहा है। सो देयरफॉर इट इज अ डबल कस्प एंड इट हैज अ पॉइंट ऑफ ऑस्कर इन्फ्लेक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 6। Example number 6 is same as example number 5. So we will have here the tangents at origin, that will be x is equal to 0. So यहाँ पे बस हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हमने y में इक्वेशन बनाई थी, y in terms of x, यहाँ x in terms of y बनेगी। So a² x² minus ay³ plus ay² x plus y raised to power 5। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं ay³ plus ay² प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ay³ प्लस ay² रेज़ टू होल स्क्वायर माइनस 4y रेज़ टू पावर 5 a² डिवाइडेड बाय 2a²। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे y³/a एंड y²/a। नाउ फॉर y नॉट इक्वल टू 0 मींस यहाँ पे y ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, y लेस देन भी 0 हो सकता है। दिस इज x की वैल्यूज है, सो x विल बी रियल। For two different signs of y, x is real, therefore it is a double cusp. Now for values y greater than 0, these both values will be of same sign, and for y less than 0, one will be positive and one will be negative. From here we will get point of Oscar inflection. So I hope all the questions are clear to you. Let's meet in the next video with the convexity and convectivity chapter.